journey of Amrit Kalash Yatra from Itanagar to New Delhi. Arunachal Pradesh, Lieutenant General KT Patnaik, PVS. Minister for Home Affairs and departments also under him. Sir has थोड़ा सा कार्यक्रम है, flag off ceremony है. हम इस सभी को important update देना चाहूँगा. इस पूरे प्रोग्राम है, कल आप प्लीज अप्लाई कीजिएगा, बैठ जाइएगा. हमारे बीच और उसके बाद एट द एंड बिफोर द फ्लैग ऑफ हमारे सभी डेलीगेट्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे. इसी बीच में आप सभी को बता दूं कि किस कार्यक्रम के आखिरी साल के रूप में उन्होंने आखिरी कैंपेन के रूप में उन्होंने जो फ्रेमवर्क है वो चाहता है कि हम अपने देश के जितनी भी इन ब्लॉक्स 109 ब्लॉक्स की मिट्टी में हर गांव का मिट्टी है. बेसिकली अरुणाचल की पहचान को अरुणाचल की मिट्टी की. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for Honorable Governor of Arunachal Pradesh. ईटानगर से दिल्ली की ओर जाएगी, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री. We already had the state level program here on the 25th of August last, which was attended by host of dignitaries and of course our Chief Minister Shri Pema Khandu. It actually consists of gathering the soil, mitti, from all the villages in the state. That was brought to the block headquarters, and 129 kalashes of that mitti from all the villages were put together and then brought to the state headquarters. And from here on, our yatris, comprising of achievers in their own fields, be it in the field of arts, sports, literature, or social work, and also from the Nehru Yuva Kendra volunteers. We have 129 from the blocks and 2 from the urban local bodies. So they will be proceeding to Delhi, and we have arranged their travel from here to Guwahati and onward from Guwahati to Delhi by a special train which will carry all of them to Delhi. The final program will be held on 30th and 31st of this month, attended by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Amongst them we have 90 boys and 41 girls and 5 officials from the Department of Youth Affairs. Actually this is an event of the Ministry of Culture and Youth Affairs, and in Arunachal the Kalash Yatra and the state level program was the responsibility of the Youth Affairs Department, and today we see the culmination of that in the state level. And I take this opportunity of thanking one and all for giving us all the support, especially the district level officers who have been tremendous in whatever was expected of them, and of course with the blessings of all the dignitaries on the dais and some of them who are not on the dais today, we have been successful in conducting this event. और अभी आज़ादी का अमृत काल में जो मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम में जो हम वीरों का वंदन, मिट्टी का नमन और वीरों का वंदन, तो ये जो प्रोग्राम पिछले 3 महीना से चल रहा है, तो ये 3 महीना में हम काफ़ी प्रोग्राम कर लिया है. जैसे कि आप शिलाफलक हम प्रोग्राम कर लिया है, जो मेमोरियल प्लेक डिस्ट्रिक्ट में 5 प्रांत के ऊपर हमने सब प्लेस ले लिया है. वसुधा वंदन, क्रिएशन ऑफ अमृत वाटिका, 75 इंडिजिनियस ट्रीज हमने वो भी प्रोग्राम कर लिया है. वीरों का वंदन, ऑनरिंग द फ्रीडम फाइटर, वो भी प्रोग्राम कर लिया हम. होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, हर घर में तिरंगा, वो भी हम प्रोग्राम कर लिया. इस तरह का जो मेरी माटी मेरा देश का प्रोग्राम हमने पिछले 3
महीना से कर रहा है। तो 3 महीना का अंदर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम 129 ब्लॉक से हम मिट्टी को कलेक्ट किया है। उसी मिट्टी को हम ईटानगर भेज दिया। आज वही 29 ब्लॉक से जो मिट्टी कलेक्ट हुआ है, उसी 29 ब्लॉक्स और 2 जो है आपका ये जो हमारा जो अर्बन लोकल बॉडीज से जो सिटीज से जो है कलेक्ट हुआ है, वो भी भेजा जाएगा। तो जुन ने जो प्रतिनिधि ने जो लिया है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप भाग्यवान हो बहुत कि आप ये जो हमारा जो मिट्टी अरुणाचल का मिट्टी ले जाने वाले हो दिल्ली में आने वाले समय में, और दिल्ली में जाके जो 7,500 ग्राम से पंचायत ग्राम से पूरा भारतवर्ष में जो दिल्ली में अमृत वाटिका जो बनेगा उसमें इकट्ठा होगा सभी मिट्टी। और इसका मतलब है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतना भारतवर्ष में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, सब जाके एक ही जगह में वो है। तो एक हमारा जो देशभक्ति का भी एक जो प्रतीक है ये, तो देशभक्ति का भी एक प्रयास है। जो हम कितना देशभक्ति है, तो हम कितना प्राउड फील करते हैं अपने देश को लेके, अपने माटी को लेके। माटी हम जब भी कुछ अच्छा काम करता है, भला काम करता है, तो हम मिट्टी को नमन करता है। हमारा धर्म में, हमारा कल्चर में क्या है, हम जो भी दान करते हैं, जब भी अच्छा काम करते हैं, मिट्टी को लेके हम कसम खाते हैं। मेरा अपना कल्चर में, मैं आप चौखम नमसाई आएगा तो आप पुजारी को हमेशा देखेगा कि जब मंत्र गाएगा, वो कुछ दान करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा, तो पानी डालेगा नीचे में, यानी कि हे धरती माता, आपको कसम लेके मैं आज जो कर रहा हूँ, आपका कसम, आपका साक्षी कि धरती माता के बिना साक्षी से कुछ काम नहीं होगा, कुछ सक्सेस होगा। इसीलिए धरती माता का साक्षी लेके वसुंधरी बोलता है, हमारा भाषा में वसुंधरी और संस्कृत में वसुंधरा बोलता है। वसुंधरा माता का साक्षी लेके नाम लेके ही पूजा करके ही हम ये शुरू करता है जो भी अच्छा काम हो। तो आज भी जो हमारा जो मिट्टी है, जो धरती माता का जो अपना धरती अरुणाचल का मिट्टी दिल्ली में ले जाना है, दिल्ली में ये अमृत वाटिका में ये फेंका जाएगा, साथ ही साथ इंडिजिनियस प्लांट भी जाएगा, तो सब एक साथ जाके वहाँ में मिलेगा। मुझे याद है कि हम पिछले कई दिनों से दुर्गा पूजा मनाते आए हैं। तो ये जो विजयदशमी का दिन, तो विजयदशमी का दिन शाम को मैंने टीवी देख रहा था, तो टीवी देखने नरेंद्र मोदी का जो भाषण मैंने सुन रहा था, तो उन्होंने सुन के अच्छा लगा, मैं शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने बोला है कि आज़ादी वैसे तो 5 प्रांत तो है ही है, तो 5 प्रांत का उपरांत भी और जो प्लेस हमको जो प्लेस लेना है उसमें से 10 जो है संकल्प, तो 10 संकल्प को लेगा तो भारत विकसित देश होगा। तो ये 10 संकल्प में है सेविंग वाटर, पानी को बचाना होगा। अगर फ्यूचर जनरेशन के बारे में आप सोचता है कि हमारा पानी को बचाना है, वी हैव टू सेव, और इफ यू थिंक ऑफ द फ्यूचर जनरेशन देन वी हैव टू सेव वाटर। मोटिवेटिंग पीपल टू यूज डिजिटल पेमेंट सिस्टम, तो आपका ट्रांसपेरेंसी के लिए, करप्शन नहीं होने के लिए डिजिटल पेमेंट का यूज़ करना है। ज़्यादा डिजिटाइजेशन को आपको इस्तेमाल करना होगा, उनका कहना है। और ये गांव को, अपना टाउन को साफ सफाई स्वच्छता रखना है, ये भी उन्होंने कहा है। फॉलोइंग वोकल फॉर लोकल, जो यूज़ ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स, जो अपना जो लोकल प्रोडक्ट्स है, इंडिजिनस हैंडलूम्स है, हैंडीक्राफ्ट है, उनको यूज़ करना है, उनका कहना है। ये जो है डूइंग क्वालिटी वर्क, जो भी काम करेगा आप क्वालिटी काम करेगा, ये जो 5वां है। 6था है ट्रेवलिंग अक्रॉस योर ओन कंट्री फर्स्ट एंड द वर्ल्ड, आप अपना देश को जानो, अपना प्रदेश को जानो, उसके बाद विदेश जाओ। अपना प्रदेश को बिना जानकर, इसे अपना देश को बिना जानकर विदेश में मत जाओ, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा अपना देश में, अपना प्रदेश में। 7 में बोला है एडुकेटिंग फार्मर्स अबाउट नेचुरल फार्मिंग,
जो प्राकृतिक फार्मिंग है उनको सिखाना है, उनको यूज़ करना है, गांव-गांव में प्राकृतिक फार्मिंग करना है, ये इसका बारे में बोला है। इंक्लूडिंग मिलेट इन आवर डेली डाइट। मिलेट तो हम सिर्फ आपोंग बनाते थे, मिलेट खाना के रूप में हम खाते नहीं थे। तो आज देखो हम मिलेट का, जब मोदी जी ने बोला है कि मिलेट ईयर ऑफ मिलेट, हम मिलेट हम प्रोग्राम में, गवर्नमेंट का प्रोग्राम में हम मिलेट से खीर बनाता है, रोटी बनाता है। मैं अपना घर में मिलेट का रोटी बना के खाता हूँ और गेस्ट आने से भी खिलाता हूँ। कितना अच्छा, कितना टेस्टफुल है। तो वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ मिलेट, वी हैव टू, इसको खेती ज़्यादा से करना है, ये उसका बारे में। तो 90 इज द फोकसिंग इन पर्सनल फिटनेस, अपने आप फिटनेस रखना है, योगा करना है, स्पोर्ट्स खेलकूद करना है, वो भी बोला है उन्होंने। फिर लास्ट में बोला अपलिफ्टिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एटलीस्ट 1 पुअर फैमिली, एक बिलो पॉवर्टी लेवल को ये मिडिल क्लास में लाना है, ये प्रयास करना है हर व्यक्ति को। तो ये अपना ड्यूटी है, ये जो हमारा जो संकल्प लेना है हर भारतीय नागरिक को, ये संकल्प लेना है, तभी भारत वर्ष विकसित होगा, तभी हमारा देश श्रेष्ठ भारत होगा। तो यही हमारा कल्पना है। तो ये इसी सोच को लेके भारतवर्ष का आने वाले अमृत काल में पूर्ण विकसित होगा। और इसी प्रयास इसी के लिए ही ये जो प्रयास जो है अभी चल रहा है, जो अमृत काल में आप लोग इसको ले जाएंगे, इस अर्न्स को, ये जो कलश को, मिट्टी को, अभी जैसे सेक्रेटरी साहब ने बोला है, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हम अरुणाचल प्रदेश में भी पिछले 3 महीना से मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम है अच्छा तरह से मनाया, सरकारी लेवल में भी हो, पंचायत लेवल में भी हो, बहुत सक्सेसफुली मनाया है। आज कल्मिनेटिंग डेज है, कल्मिनेटिंग समय है, फ्लैग होगा महामहिम गवर्नर का जरिए से। तो बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है। मैं सभी अरुणाचल वासियों को मेरा पूरा शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एकत्रित हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम के उपलक्ष्य में, जिसकी संकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने रखी थी 3 महीने पहले, और ये संकल्पना आज़ादी का अमृत महोत्सव इससे जुड़ी है। जो 2 साल से उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि हमने काफ़ी कार्रवाई की है, तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का अंतिम जो चरण है वो आपके हाथों होने वाला है। मेरी माटी मेरा देश एक ऐसा अनूठा, यूनिक एक अभियान है जो पूरे देश को जोड़ने की संकल्पना है। मोदी जी के द्वारा प्रस्तावित ये जो प्रोग्राम है, उसके अंदर उनकी इच्छा थी कि हम पूरे देश के सभी ब्लॉक्स में जो माटी है, जो हमारी जीवन दाता है, और इस माटी के ऊपर अरुणाचल में सभी ट्राइब्स जो हैं जो फेस्टिवल मनाते हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये फसल के ऊपर आप ये मनाते हैं। ये फसल कहाँ से आती है? ज़मीन से, हमारी मिट्टी से आती है। और इसीलिए मिट्टी का जो महत्व है हमारे इतिहास में, भारत का जो संस्कृति है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा मायना है। और इसका जो अभियान जो चलाने का जो ध्येय है वो है वीरों की प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना और देश की सेवा करते रहना। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम उन्होंने इस उद्देश्य से रखा है कि हमारे देश में जितने राज्य हैं, प्रांत हैं, सब डिवीज़न हैं और ब्लॉक हैं, वो सभी जन, उसमें एक चीज़ सबसे कॉमन है, वो है हमारी मिट्टी, देश की मिट्टी। हमारा देश भाग्यवान है कि हमारे देश में अलग अलग किस्म का वातावरण है, जहाँ बर्फीली चोटियाँ हैं, पहाड़ है, जंगल है, रेतीले
मैदान हैं, जहाँ प्लेन एरिया है, जहाँ समुद्र तट का वातावरण है, इस सब को मिला के अगर हम मिट्टी को एक करेंगे तो ये दर्शाएगा कि हमारे आपस में जो भाईचारा है वो कितना बड़ा है। दूसरी बात, जो उनका ध्येय है ये पूरा अभियान चलाने का, वो है कि देश में सबकी प्रगति हो, सबका विश्वास, सबका कल्याण। और उसको देखते हुए उन्होंने ये 5 प्रण या 10 प्रण जो अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको बताए, इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। और इसका जो माध्यम था वो था अमृत कलश। उनका मानना है कि मिट्टी अमृत तुल्य है, इससे सब कुछ उत्पन्न होता है। तो हर एक ब्लॉक से हम अपने अमृत कलश दिल्ली ले जाएं और वहाँ पर अमृत वाटिका जो है, जो दिल्ली में जो युद्ध स्थल है, वॉर मेमोरियल है, उसके पास में अमृत वाटिका का निर्माण हो, जहाँ पर 7,500 जो है पौधे लगाए जाए। हर पौधा एक एक ब्लॉक को जाहिर करता है। आप ये यकीन करें कि 2, 3, 4, 5 साल में जब ये पौधे बड़े होंगे तो ये वास्तव में एक अमृत वाटिका होगी जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करेगी। तो देश निर्माण, देशभक्ति, नेशन फर्स्ट और अपने देश के प्रति गर्व और हौसला अपने दिल में रखना, ये सारी भावनाएं इससे जुड़ी हैं। और किसी कवि ने ठीक कहा है कि देश की सेवा करते जो नरवर निष्काम, देश की सेवा करते जो नरवर निष्काम, गगन पटल पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा रहेगा उनका नाम। और इस बात को सत्य करने के लिए ये सारा जो अभियान चलाया जा रहा है, ये इसकी वजह से है। हम उन सभी वीरों को, उन सब शहीदों को, उन सब को जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, उन सब को जो छोटी छोटी जगहों में अपनी भूमि की, अपनी मातृभूमि की, अपने मिट्टी की रक्षा कर रहे हैं, उन सभी को जो है उनका अभिनंदन करना, उनको मान देना। और यही एक वजह है कि इन्होंने मेरी माटी मेरा देश ये एक अभियान चलाया है। जो 5 प्रण है उसके बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि जो 5 मुख्य प्रण जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिए हैं वो क्या है। सबसे पहला है कि भारत को 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर देश बनाने का सपना, इसको साकार करना है। हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है और 2047 में हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और 100 सालों के अंदर हमने पूरा हासिल करना है। दूसरी बात कि हमारे देश में अलग अलग लोगों ने आके राज किया। पहले मुग़लों ने किया, फिर हम अंग्रेज़ों की एक गुलामी के अंदर फंस गए थे। तो गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकना, ये दूसरा प्रण है कि जो भी चीज़ें बाहर से हमको सिखलाई गई है उसका बहिष्कार करें। जो हमारी खुद की चीज़ें हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसके ऊपर हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसको अपनाना है। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करना। हमारे देश का जो इतिहास है 5000 साल से भी पुराना है और हमारे देश में वो सब लोग हुए हैं जिन्होंने शिक्षा दी है पूरे विश्व को, चाहे भूगोल हो, चाहे साइंस हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षण हो, कुछ भी। तो हमने उस विरासत के ऊपर गर्व करना है। चौथी, भारत की एकता को और सुदृढ़ करने के लिए देश की रक्षा करने वाले का सम्मान करेंगे। तो वो सब लोग जो देश की रक्षा करते हैं, चाहे वो बॉर्डर पे करते हों, चाहे वो अलग अलग प्रांतों में करते हों, चाहे उनको दिया हुआ टास्क हो जो कि
देश की संपत्ति की सुरक्षा करना हो, इन सब को हम सम्मान करेंगे। इसका दूसरा मतलब ये है कि जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें इनके बारे में सोचना चाहिए कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप अपनी तरीके से बगैर फ़ौज में जाए भी आप देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं वो प्रण आपको मुख्यमंत्री जी ने अभी पढ़ के सुनाया है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दशहरे के दिन दिल्ली में इसके ऊपर बात की थी। और आखिर में अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा नागरिक कौन है? और इसका उदाहरण मैं अक्सर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देता हूँ। शिक्षित, अनुशासित, प्रेरित। जो व्यक्ति शिक्षित हो, अनुशासित हो और प्रेरित हो, वो एक अच्छा नागरिक है। वो अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और देश के लिए भी अच्छा काम कर सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे नागरिक बने, और ये सिखलाई हमें अपने स्कूल से, कॉलेज से और अपने घरों में, तीनों जगह पे मिलनी चाहिए। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग भाग्यवान हो। आप अपने अपने ब्लॉक से जो ये अमृत कलश लेके आए हैं, ये आपके साथ दिल्ली जाएगा, और वहाँ जो अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा, वहाँ पर ये पूरी माटी सम्मिलित एक हो जाएगी। तो उसका जो उल्लेख है, ये देश की माटी है, और देश की माटी के ऊपर आपने कई गाने सुने होंगे, पिक्चरें देखी होंगी, लोगों को सुना होगा बोलते हुए। साहब ने भी उसके ऊपर उदाहरण दिया कि हम जब भी घर में कोई त्यौहार करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके अंदर अपने धरती माता का या फिर आपकी माटी का जिक्र होता है हमेशा। तो उसके ऊपर हम गर्व करें। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपका जो यहाँ से जो भी आपकी जर्नी होगी, प्रवास होगा, वो आराम से और मंगलमय हो, और दिल्ली में जाके आप अरुणाचल के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जब भी आप ये सब काम करेंगे तो उस वक्त क्या वातावरण होगा इसका मैं अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जब वापस आएँ तो आप पूरे अरुणाचल प्रदेश के प्रदेशवासियों को बताएं कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। उसके लिए हम सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका ये मिशन सक्सेसफुल हो, वो मैं अरुणाचल के सभी वासियों की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। Thank you, sir. With this, we are at the end of this small yet humble yet very important event. जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वीं साल के बाद भारत सरकार की तरफ से ढेर सारे कार्यक्रम इस लिहाज में बनाए गए हैं, और ये पिछले साल अगस्त 15 से शुरू हुई है। और उसी कड़ी में ये आखिरी जो प्रोग्राम है, मेरा माटी मेरा देश के तहत, माटी को नमन वीरों को वंदन के तहत ये पिछले 3 महीना से कराया गया है। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो कि नेपाल और भूटान बॉर्डर में तैनात है, उनकी सारे एवार में ये हर गांव से एसएसबी साथ रही है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ। और ये
हर घर से इकट्ठा करते हुए पहले ब्लॉक में लाया गया, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में लाया गया और डिस्ट्रिक्ट से अभी राजधानी ईटानगर में आया गया। इस अमृत कलश यात्रा के तहत 131 जो डेलीगेट्स है गांव से लाए गए हैं वॉलंटियर्स, इनको आज गवर्नर महोदय के द्वारा ये फ्लैग ऑफ किया गया। इससे हम मिट्टी के साथ हमारी जो संबंध है, क्योंकि हर चीज़ मिट्टी से जुड़ी हुई है, और हम अपनी जो शहीद वीरों को नमन करते हुए ये सारे अमृत कलश यात्रा दिल्ली तक जाएगी, जहाँ पर अमृत वृत्ति का अक्टूबर 30 और 31 को मेन प्रोग्राम कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।